especially in modern periodic, there are 7 horizontal rows. They are called as periods. मैं फिर से brief revision कर दे रहा हूँ. There are 18 vertical columns which are called as groups. Okay. And modern periodic table is based on, मैं ऐसा एरो लगा रहा हूँ, increasing order of their atomic number. So it is in the increasing order of their atomic number. Okay. And they are classified into blocks. They are classified into blocks. और वो blocks कैसा था, बोलो कैसे कैसे कैटेगराइज किया था? S block, P block and D block and F block. Yes, इसको मैंने क्या बोला था? S block. इसको मैंने क्या बोला था? D block. इधर वाले को क्या बोला था मैंने? P block. और कल मैंने बताया था कि हाउ S block, P block, D block and F blocks are categorized, है ना? तो if during electronic configuration last electron is entering into the S orbital, then it is called as S block. तो S block में कितने बॉक्स हुआ करते थे? 1. कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते थे? 2. मैं P ऑर्बिटल की बात करूं तो P में कितने बॉक्स होते थे? 3. And how these boxes are coming? Yes, 3. And how these boxes are coming, that I will prove you कि there are only 3 and why they are only 3. So in one maximum 2 electrons, so maximum 6 electron. In D, so there are 5 boxes. Orbitals. That is how many box? 5. Maximum electrons could be 10. I said max. F orbital, there are 7 orbitals and there could be maximum 14 electrons. Okay. Any problem? No sir. No sir. That's why 2 electron maximum in S. That's why there are 2 groups. In P block there are 6 groups because there maximum there could be 6 electrons. So this is देखो 13, 14, 15, 16, 17. So this is 6. In D orbital there will be 10 electrons in the outermost shell. That's why this is 3 से लेकर के 12. So this one is maximum how much? 10. This one is how much? 2. And this one is 6. देखो, so all these are depending on electronic configuration. All these are depending on electronic configuration. Yes or no? Yes. It is depending on electronic configuration. So S orbital is having 2 electrons maximum. S electron is having 2 electrons maximum. That's why there are how many electrons? 2. 2. P orbital is having maximum 6 electrons. 6 electrons. That's why it is 6 groups. Okay. तो ऐसा करके हम लोगों के पास there will be total 18. There will be total 18. देखो F orbital में there are 14 electrons और यहाँ पर there are 10 electrons. यहाँ पे कितने हैं? There are 10 groups, है ना?
इसलिए मैंने एफ ब्लॉक को देखना यहां से निकाल करके वो बाहर अरेंज करके रखता है। एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अ पीरियड ऑफ एफ ऑर्बिटल वाले में, बोलो 14. 14। इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल करके किया है। यस और नो? हो सकता है इन फ्यूचर, हो सकता है इन फ्यूचर दिस पीरियोडिक टेबल विल बी टोटली डिस्टर्ब्ड if other elements are coming which are crossing s p d f orbital. I mean they are not accommodated in f orbital. समझ में आ रहा है? इन फ्यूचर सपोज वो f ऑर्बिटल में नहीं आ रहा है तो मुझे दूसरे ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आई मीन दूसरा ब्लॉक का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, फिर से पूरा पीरियोडिक टेबल विल बी डिस्टर्ब्ड। यस और नो? Sir, हाँ sir, but I have a periodic table in front of me right now, and I just counted it, but the F block has 15 groups. 15। हाँ Yes, sir. उसमें क्या हो रहा है, जो लेंथेनम होता है ना, देखो फर्स्ट लेंथेनम Yes, sir. एंड एक्टिनियम, ठीक, उसी के नाम पे लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड सीरीज बोला करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास ये 12th क्लास में प्रॉब्लम आता है कि दो लैंथेनम इज बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक। क्या वर्ड यूज कर रहा है? लैंथेनम इज बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक, देन व्हाई इट इज प्लेस्ड इन एफ ब्लॉक, है ना? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में ही आता है। ठीक, Okay, sir. हाँ वो हम लोग अभी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पूरा डिटेल्ड में हम लोग देखेंगे, बट अभी नहीं। वो हम लोग का डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पूरा चैप्टर ही है। आई मीन डी ब्लॉक इज अ चैप्टर, पी ब्लॉक के जितने भी हैं उसके एक एक चैप्टर, तो ये हमको मिलेगा इन फ्यूचर। तो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो this is broader classification of the elements in the tabular form where all physical and chemical properties can be described in better way. All can be described in the better way. चलो let us start with simple। अभी मैंने उसका दो ग्रुप्स को लिख करके दिया था। पहला हमने क्या लिखा था अगर याद हो कल? लीना कुमारी रायबरेली से फरार। यस, लीना कुमारी रायबरेली से फरार। लीना कुमारी रायबरेली से फरार मतलब एफआर। फिर मैंने कल ही लिखा था क्या? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबरा जी। मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड ऐसा है ना, रेडियम टाइप का। तो थर्ड ग्रुप आओ, थर्ड ग्रुप 13th ग्रुप। तो दिस इज 13th। और देखो दो चीजें है, ध्यान से देखो, आइदर 13th इन न्यूमरल वर्ड और थर्ड ए कहाँ पे होगा ये देखो, इधर देखो, बाद में लिखना सभी लोग। दिस इज फर्स्ट ए रोमन वर्ड, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, सिमिलरली एथ ए। पहले बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. तो 1 2 3 4 5 6 they will be given as A in the Roman word if they are belonging to S and P. If it is belonging to D orbital, then it is B, capital B दूंगा। अभी देखता हूँ धीरे धीरे करके।
तो थर्ड ए और 13th ए, दिस इज नथिंग बट, क्या बोल रहा है, बैंगन। बैंगन जानते हैं, बैंगन जानते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. ब्रिंजल को बोले हैं बैगन। व्हाट इज थैला? Sack. सैक, बैग के लिए बोले हैं। तो ये क्या था, कुछ नहीं बल्कि बोरॉन फैमिली का नाम। बैंगन, बी आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, दिस इज इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। चलो आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. तो दिस इज 14th और 4th ए। So this is nothing but carbon family. This is nothing but carbon family. तो कार्बन फैमिली में मेरे पास कौन कौन से है, क्या बोल रहा है? काशी गए। मेरे ये नहीं समझ में आता है कि डेली दो तीन लोग एब्सेंट रहते हैं। मैंने फर्स्ट बैच ऐसा देखा है अपनी लाइफ में कि स्टार्ट से ही लोग एब्सेंट हो रहे हैं। और ऐसा ऐसा कौन सा बीमारी होता है जो एक दिन के बाद ठीक हो जाते हैं? उनको फोन करो तो बोलते हैं बीमार है, ठीक नहीं है। हाँ, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर ही तो बनना चाह रहे हो, क्यों? Yes, sir. ये 11th क्लास है, 10th क्लास नहीं है कि वहां पे घर पे रह करके कवर कर लोगे। ये पीरियोडिक टेबल है, सिंपल है। बाकी और कोई चैप्टर अभी जो आ रहे हैं स्लोली स्लोली ना, उसमें लोग पागल हो जाते हैं। घर पे बैठे रहते हैं और क्लास नहीं अटेंड करते। इस टाइम पे जो भी होगा घर पर ही तो होगा। Yes, sir. डेली तीन चार एब्सेंट होने ही होने रहते हैं। हार्डली एक वीक का क्लास रहा होगा जिसमें फुल्ली प्रेजेंट ही रही होगी। उसके बाद से लेकर के डेली तीन चार एब्सेंटीज रहते ही रहते हैं। और डिफरेंट एब्सेंटीज। 2 दिन के बाद कोई और आएगा, 2 दिन के बाद कोई और नहीं आएगा, ऐसे चल रहा है। तो दिस इज काशी गए संस्कृत पढ़ने। काशी जानते हैं? काशी इज नथिंग बट वाराणसी, बनारस को बोला करते हैं। Yes, sir. वहां से मोदी अभी क्या है, नरेंद्र मोदी क्या है वहां के, जो भी एमपी होते हैं वही के हैं इस टाइम पर। चलो आ जाओ। सो दिस इज नथिंग बट कार्बन के लिए, सी सिलिकॉन के लिए, काशी गए संस्कृत पढ़ने। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एसन बोल रहा है, एंड लेड। नोट करो जल्दी से। नोट करो। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir.
तो काशी गए संस्कृत पढ़ने। कार्बन फैमिली। नेक्स्ट वन 15th न्यूमरल वर्ड और 5th ए। अभी दूसरी कोचिंग में वो डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर में बुक को रखते हैं, उसी को रीड कर देते हैं, हो जाता है। न्यूमेरिकल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, याद रख लेना। तुम लोग को हमने कितने न्यूमेरिकल्स करवा के दिए, उतने न्यूमेरिकल्स करवा के दिए जितना वो 5 चैप्टर में मिला के करवाएंगे, जितना मैंने तुम लोगों को एक चैप्टर में करवाया हुआ है। वो थियोरेटिकली खूब स्ट्रांग होते हैं। सो दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के लिए क्या बोल रहा है? नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। ठीक, नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। तो सभी लोग लिखो नाना एन, नाना को लिखो एन। लिख लिया? Yes, sir. चलो, पाटेकर पी, पाटेकर पी, पी अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस। पी लिया तो इज फास्फोरस, पी लिया तो इज फास्फोरस। हो गया? नाना पाटेकर ए एस असली, ए एस असली, ए एस असली। असली का मतलब क्या हो गया? आर्सेनिक। Arsenic. ए एस इज आर्सेनिक, ए एस इज आर्सेनिक, ए एस इज आर्सेनिक, ए एस इज आर्सेनिक, ए एस इज आर्सेनिक। यस और नो? Yes, sir. चलो, एंड भिखारी इज बी आई, बिस्मत। नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। मैं ऐसा भी बोल सकता था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार। या मैं बोल सकता था नहीं पढ़ना ऐसे सब्जेक्ट बायो। तुम्हारे ऊपर है कैसा बना दो। हाँ, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो बना सकते हैं, बस मुझे याद ही तो करना है ना, हमारा टारगेट है और क्या। चलो, नाउ 6th वन इज आइदर 16th ग्रुप और 6th, बट ए लिखा। दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, इसमें क्या है? उस स्टाइल से टेपो, उस स्टाइल से टेपो, उस स्टाइल से टेपो। ये क्या हो गया? उस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड
पोलोनियम। ये तुमको 10th क्लास का नहीं है, ये 11th क्लास का है, और इस पे तुमको खूब बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब पे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए कराया जा रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। डन। ये आया, that is called as halogen family। हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन को छैल्कोजन फैमिली बोला करता हूं। Now this is 17th or halogen family, that is 7th A। 7th A को तुमने क्या नाम दिया था? हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली बोल सकता था। तो दिस इज नाना नाना पार्टिकल का तो फिफ्थ ग्रुप था। दिस इज नथिंग बट फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। डन। Yes, sir. Noted? Now 18th ग्रुप तुमको रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसका शेप, साइज, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे प्रॉपर्टीज ग्रुप 18th का हम लोग लिखते ही नहीं थे, बट फिर भी हम लोग कहीं पे कंपेयर नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट याद कर ले तो और अच्छा है। ये कौन सा था, इसका नाम बोलो? इनर्ट Inert गैस। इनर्ट गैस के लिए मेरे पास क्या क्या था? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, और क्या था? सॉरी, उल्टा लिख दिया। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन एंड जेनॉन एंड क्रिप्टन। ठीक। नहीं सर, नहीं, क्रिप्टन और बराबर जेनॉन ही नहीं है। सर, हाँ, क्रिप्टॉन देन जेनॉन। हाँ, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और जेनॉन एंड देन क्रिप्टन। Sir, krypton and then xenon. क्रिप्टन एंड देन जेनॉन। Xenon. Yeah. ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, इसके लिए तुम क्या बना सकते हो? हाय नेहा, आर्या, जेरोक्स करो। ठीक है, करो जेरोक्स। Sir, what about radon then? ठीक है, ऐसे ही फनी वे में कुछ भी बना ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir.
हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि इस वाले पीरियोडिक टेबल इस वाले ग्रुप में तुमको बना करके कुछ करना नहीं है। कहने का मतलब है इसके प्रॉपर्टीज हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज मेजर नहीं करते हैं, ये ऐसे ही पड़ा रह जाता है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सब लोगों के पास है क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने ग्रुप पे कभी भेजा क्या तुम लोग के? नो सर। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ सभी लोग डी ब्लॉक वालों के लिए, डी ब्लॉक वालों के लिए आ जाओ, डी ब्लॉक वालों के लिए आ जाओ। तो डी ब्लॉक के लिए अगर तुम आते हो तो एक्चुअली में क्या होगा, डी ब्लॉक का कहां से स्टार्ट होता था? स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम। ठीक है, तो अब तुमको याद करने वाली बात आ जाती है। तो देयर आर सो मेनी वेज, फिर से याद करने के लिए मैंने बोला दिस इज स्कैंडियम, अभी मैं लिख देता हूं, फिर मैं बाद में उसका वर्डिंग लिखता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, फिर क्या था? क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, बोलो उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, Iron. निकल, कॉपर, जिंक। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो एक तो मेरे पास हो सकता था ऐसा, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मांगे फीस कोई नहीं करे जमा। जमा का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट, है ना? यस सर। तो ऐसा हो सकता था। देर आर सो मेनी वेज, देर आर सो मेनी वेज। तो चलो, चाहो तो लिखना चाहे तो हम लोग लिख लें यहीं पर। साइंस टीचर, मैं बोल रहा हूं वेरी क्रेजी मांगे फीस कोई नहीं ठीक। हालांकि मैं ऐसा लिख देता था, कोई नहीं कहे जानू। ठीक, तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी कर सकते थे, है ना? तो एटलीस्ट मुझे इतना तो याद होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस, इसके नीचे का भी मैं तुम लोगों को याद करने का बता सकता हूं, लेकिन झूठ मूठ का वो हेडेक जाएगा कि इतना कैसे याद किया जाए। तो और सभी के सिंबल्स वगैरह, इसीलिए मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह ये इधर उधर आते हैं, और जो भी वो देते हैं नॉर्मली, तो हम लोग का नॉर्मली अप टू 30 तक ही देते हैं। ठीक है ना? नॉर्मली मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि इसके आगे नहीं आता है या क्या होगा। ठीक, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगा, लाइक इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम। मैं बोलता हूँ ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो करके पुकारेगी आज चांदनी, तो वो उसमें हो जाता है इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, ऐसा करके। तो जैसा तुम लोग बोलोगे तो वैसा मैं करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? उसके आगे का भी मैं कर सकता हूँ, ला हफ्ता ताऊ, वरना रेउस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा आ जाएगा, उसका खत्म, पूरा डी ब्लॉक खत्म। एक ब्लॉक में जाने के लिए मैं बोलूंगा लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया,
ठीक है, ऐसा मैं करूंगा तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल। तुम लोग बोलो करना है क्या? नहीं भी करेंगे तब पर भी चलेगा, समझ में आ रहा है क्या? बट इतना तक मुझे याद होना चाहिए, इतना तक मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे याद होना ही चाहिए। चलो अगर ऐसा आएगा डी ब्लॉक वगैरह एफ ब्लॉक वगैरह तो मैं वहां पे करवा दूंगा। ये नोटेड? Yes. Yes, sir. नोटेड प्लीज। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद का भी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जितना भी है मैं वो सब करवा सकता हूँ, करवा दूंगा इनफैक्ट, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता जाएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक, बोलो सुस्वान, shall I start forward? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दिस इज द फनी वे ऑफ remembering periodic table, at least I said up to periodic atomic number 30 and पूरा D S block and पूरा P block ये मुझे आना चाहिए, और यही प्रॉपर्टीज वगैरह इन सबके कंपैरिजन होंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लीज। अच्छा, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूं तो, जो कि मैंने कल लिख करके दिया था आज मैंने नहीं लिखा, तो फिर से लिख लो। हाँ, फर्स्ट ग्रुप वालों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था मैंने, बोलो? 1. NS1। इसका कितना लिखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2. NS2। इसका कितना? NS2 NP1. NP1। मैं बताऊंगा ये कैसे आएगा, सब बता दूंगा, डोंट वरी। स्लोली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीजें अभी आती जाएंगी, बट अभी लिख रहा हूं, बाद में हम लोग इसको देखते हैं पूरा ग्रेट डिटेल। ये कितना हो गया?2. NP2। ये कितना आ गया? NP3. NS2 NP3। NS2 NP4। उल्टा कैसे आ गया भाई? 13 1 2। ओह, तभी तो मैंने बोला कार्बन फैमिली, और यहाँ हमने एक बार लिख दिया ना, ये देखो, ये इसका होना चाहिए था, कार्बन फैमिली का नहीं था वो। देन गो टू द ऑक्सीजन फैमिली, NS2 NP, बोलो? 4. 4। What about halogen family? NP5. NS2 NP5। 5. This is NS2 NP6। 6. ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, बताता हूं अभी, इसीलिए इनर्ट होता है। तो लिखना है ये सब NS1 NS2 NS2 NP2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 and NP6। okay, Yes, sir. done? Yes, sir. Very good. So let us move forward, let us move forward, let us move forward. Next heading लिखो periodic properties। Next heading is periodic properties। periodic properties। अब तुमको वो प्रॉपर्टीज देखने हैं ठीक, जिससे तुम लोग का पूरा पीरियोडिक टेबल गवर्न होगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग का स्टार्ट होगा
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो अब मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखा रेडियस, एटॉमिक रेडियस। प्लीज राइट डाउन फर्स्ट, राइट डाउन क्या लिखेंगे? Atomic radius. Yes, first one is atomic radius. 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 तो atomic radius की मैं बात करूं तो atomic radius. What is atomic radius? बोलो। The distance from the center of the nucleus to the outermost shell. Yes. तो ये वाला क्या है? This is R and this R is nothing but what? Atomic radius. Since it is assumed that atom is spherical in nature. I'm not saying circular, I'm saying spherical. Why it is spherical? क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब हैं सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है ना। नॉट सॉलिड, आई मीन दे आर हैविंग रेगुलर स्पेस, उसको वर्ड यूज करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, आएगा दे वर्ड करके, ठीक। तो अब पूरा हम लोग जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे 2 तरीके से, कैसे? अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, एंड अलोंग द पीरियड हम लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो तुम लोग मुझे बोलो कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप? Increase. तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। उसका क्या रीजन हो सकता है बोलो? Increase in number of outermost New shells. shell is added. On moving down the group there is extra addition of क्या? Cells. There is extra addition of the cells, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, लिखते जाओ, force of attraction between last electron and nucleus क्या हो जाएगा? Reduce. बोलो, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। पूरा मैं अभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेडियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब पता नहीं है हम लोगों को कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्ड वर्जन में करके देता हूं कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो ठीक है, मैं